the replication, step by लिखते ना, first point, the replication of DNA molecule start with opening of helix. Let's stop. Opening of Helix. The enzyme helicases unwind the helix using the, underline करेंगे, important है, using the ATP as source of energy. Using the ATP as source of energy. Full stop. After opening the helix, the strain is produced at the mouth of fork. Strain is produced at the mouth of fork, which is removed by topoisomerases, They cut and unwind, they cut and rejoin the DNA helix. By this way, they remove strains. Full stop. Next, third point is a non-enzymic single-stranded binding protein SSB, a non-enzymic single-strand binding protein SSB, which is also called helix stabilizing protein, stabilizes helix stabilizing protein, stabilizes the single strand of DNA helix. इसके नीचे नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे, दिस इज ऑल्सो एक्सक्लूसिव क्वेश्चन फॉर नीट एग्जामिनेशन. Note, in prokaryote, the enzyme gyrases. Perform the function of helicases and topoisomerases. Both. Next point. फिर से स्टार बना के लिखो. In prokaryote, there are generally single origin of replication
and single origin of replication, ब्रैकेट में लिखना ओराई, single origin of replication and the replication progresses, मैं बता चुका हूं आपको एक पॉइंट है ना, and the replication progresses in both direction. Next point, अब अगला पॉइंट है a short chain of RNA is formed. A short chain of RNA is formed at DNA template at 5 prime end with the help of enzyme primases, with the help of enzyme primases. Full stop. इसी में लिखेंगे the fragment of RNA is called RNA primer. The fragment of RNA is called RNA primer. Next point. The formation of new DNA strand, takes place on template at 5 prime end with the help of DNA polymerases. Next point. The DNA polymerase can polymerize deoxyribonucleotides. DNA polymerase can polymerize deoxyribonucleotide in only 5 to 3 prime end direction. In only 5 to 3 prime end direction. Full stop. One new strand is formed in continuous stretch. One new strand is formed in continuous stretch in 5 to 3 direction. This strand is called leading strand. Next point. On other parent strand, a short DNA fragments
on other parent strand, a short DNA fragments are formed in 5 to 3 prime end direction, in 5 to 3 prime end direction, full stop. This discontinuous strand, this discontinuous strand is called, this discontinuous strand is called lagging strand, and a small fragment and a small fragment of DNA are called Okazaki fragment. Called Okazaki fragment. Full stop. Next point. In lagging strand, Okazaki fragment, in lagging strand, Okazaki fragment are linked up together by enzyme, linked up together by enzyme, DNA ligase, DNA ligase, or DNA or DNA synthase, or DNA synthase. Next point. Sometime the wrong base get in, these are Sometime the wrong base get in, these are recorrected by DNA polymerase, these are recorrected by DNA polymerase, and for this purpose DNA polymerase can go back. Next point. DNA polymerase also removes primer, and this process is called proofreading, and this process is called proofreading. By this way, formation of new strand, by this way formation of new strand takes place on older strand, on older strand. चलो अब नेक्स्ट नोट करो, टाइप्स ऑफ आरएनए। अच्छा एक मिनट होल्ड करना, जस्ट मिनट मैं चेक कर लूं एक बार कुछ रह तो नहीं गया। थोड़ा सा एनसीईआरटी इसमें सीक्वेंस आगे पीछे दिया हुआ है, इसलिए मुझे हमेशा चेक करने दो कुछ रह ना जाए। हाँ यही चीज थी। ट्रांसक्रिप्शन पहले दिया है और
टाइप्स ऑफ आरएनए बाद में दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए। तो कितने टाइप के आरएनए पाए जाते हैं भाई लोगों? कितने टाइप के आरएनए होते हैं? तो भाई साहब वैसे तो आज की डेट तक में 20 तरह के आरएनए खोजे जा चुके हैं, 20 टाइप ऑफ आरएनए, लेकिन उनमें से 3 आरएनए ऐसे हैं, 3 आरएनए जो मोस्ट कॉमन है। तो नोट करेंगे टिल द डेट we have discovered till the date we have discovered 20 type of RNA, 20 type of RNA. Out of them 3 are most common, 3 are most common. And what are those 3 RNA? मैं अभी आपको बताता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं आपको RNA का डायग्राम जरा निकाल लूँ आपके लिए। स्ट्रक्चर चलो तो पहले देखो, मैं आपको पहले बता दूं कितने टाइप के आरएनए पाए जाते हैं। तो भाई साहब मोस्ट कॉमन है वो 3 तरह के आरएनए, उसमें से पहला है mRNA। इस स्मॉल m का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, ठीक है। दूसरा है tRNA, इसका मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए, है ना। और थर्ड rRNA, इस स्मॉल r का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तो mRNA, tRNA, rRNA। ठीक है। यस तो सबसे पहले हेडिंग डालिए mRNA, मैसेंजर आरएनए। देखो सर एक बार आप रिपीट कर देंगे, मुझे कहा कि 20 टाइप के 20 से ज्यादा पाए जाते हैं उसके आगे। नहीं, मैंने ये कहा कि टिल डेट वी हैव डिस्कवर्ड 20 टाइप्स ऑफ, या नॉट 20, ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 टाइप ऑफ आरएनए। आउट ऑफ देम 3 आर मोस्ट कॉमन। थैंक यू सर। mRNA, tRNA, है ना। तो पहला आप देंगे mRNA। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर से समझिएगा, जो मैं कहानी आपको समझाने वाला हूँ उस बात को बहुत ध्यान से समझिए, इन सबका क्या मतलब। राइबोसोमल आरएनए वो आरएनए है जो राइबोसोम का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है, मतलब कि राइबोसोम 2 चीज से मिलकर बना होता है, आरएनए और प्रोटीन। जिन लोगों ने में से सेल बायोलॉजी पढ़ी होगी उन्हें याद होगा कि मैंने बताया था कि राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन मिलकर के राइबोसोम का फॉर्मेशन है। तो कुल मिलाकर के जो आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए, ये एक स्ट्रक्चरल पार्ट है, एक स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट है, नॉट फंक्शनल कॉन्स्टिट्यूएंट, है ना। तो ये एक स्ट्रक्चरल चीज। आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, जो लोग लास्ट क्लास में मतलब 11th में जिन लोगों ने में से पढ़ा है और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा उनको ही बताता हूँ। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि क्या होता है प्रोटीन किस चीज से मिलकर बना। तो मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन किस चीज से मिलकर बना है। तो प्रोटीन छोटे छोटे इस तरह के पार्टिकल से मिलकर बना है।
इन पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं, मैं ये हटा ही देता हूँ पहले, ब्लैंक पेज पहले दिखाता हूँ, ब्लैंक पेज। तो मैं ये बता रहा था कि मैंने आपसे कहा कि देखो प्रोटीन किस चीज से मिलकर बना है, तो ये छोटे छोटे इस तरह से कुछ यूनिट है, इन यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इन यूनिट्स को एमिनो एसिड। अमीनो एसिड आपस में क्या करते हैं, ये सब अमीनो एसिड आपस में चेन का फॉर्मेशन करते हैं। मैं आपको रिकॉल करता हूं कि मैंने आपको बताया था, तो अमीनो एसिड आपस में किस चीज से मिलकर जुड़ते हैं, कौन से बॉन्ड बनाते हैं आपस में एक दूसरे के बीच, पेप्टाइड। वेरी गुड। तो पेप्टाइड बॉन्ड से मिलकर बने होते हैं। तो अमीनो एसिड की पेप्टाइड बॉन्ड, तो अमीनो एसिड की ये लंबी सी चेन को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन, यही बोलते हैं ना, यस यस सर। तो हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन जब फोल्ड हो जाती है तो हर चेन के फोल्ड होने का अपना अलग अलग पैटर्न होता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन। और जब प्रोटीन कोई फंक्शनल काम करने लगता है तो उसी को हम एंजाइम कह देते हैं, है ना। तो एमिनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड चेन और प्रोटीन में आपको मतलब समझ में आ गया होगा, तीनों में आपस में क्या रिलेशन है समझ में आ गया, समझिएगा। तो अभी क्या है, मेरी बात को बहुत गौर से समझिएगा, है ना। पूरी स्टोरी को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, बीच बीच में नहीं कहेंगे कि हाँ सर क्या हुआ, है ना। ध्यान समझना, एकदम पूरा फोकस चाहिए मेरे को इधर आप सबका, बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो बाकी पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, पूरा आपको जेनेटिक्स समझ में आ जाएगा आगे का जो हम पढ़ने वाले हैं। अभी क्या है कि मैं इस स्टूडियो के अंदर बैठा हुआ हूं, है ना। मैं यहां से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मैं बाहर जाना भी नहीं चाहता, ठीक है। इस पूरे रूम में यहां पर सामने एक गेट है, एक दरवाजा है, और इस दरवाजे का साइज बहुत छोटा है, इस दरवाजे से मैं बाहर निकल नहीं सकता हूं, तो मैं रूम के अंदर ही रहूंगा, मैं बाहर तो जाऊंगा नहीं। लेकिन मुझे क्या है, मुझे एक बुक्स का बड़ा सा बंडल चाहिए, बुक्स का एक बड़ा सा बंडल चाहिए, है ना। 10-20 बुक्स का बंडल चाहिए, अलग अलग बुक्स है। तो मैंने दरवाजे से ऑफिस बॉय को बुलाया, ऑफिस बॉय मेरे पास आया। तो ये रूम था न्यूक्लियस, और ये रूम में जो दरवाजा लगा हुआ है, गेट लगा हुआ है, ये न्यूक्लियर पोर है। और मैं कौन हूं, मैं डीएनए हूं। तो रूम न्यूक्लियस हो गया, मैं डीएनए हूं, और ये न्यूक्लियर पोर दरवाजा है जिससे मैं बाहर नहीं जा सकता। और इसके बाहर की जो दुनिया है वो क्या है, वो प्रोटोप्लाज्म। तो मैंने एक लड़के को बुलाया, एक ऑफिस बॉय को बुलाया, वो छोटा सा लड़का था, इस दरवाजे से अंदर आया, वो दरवाजे के अंदर बाहर जा सकता है, मैं नहीं जा सकता। तो मैंने कहा कि एक काम करो, तुमको मैं एक बुक की लिस्ट देता हूं, उसको ध्यान से देखो, और ये बुक्स तुमको जाकर के बाहर रोड में एक बुक शॉप है, वहां से लेकर के आनी। उसने बोला ठीक है सर। तो मैंने उसको अपना मैसेज दिया, मैसेज में क्या था, बहुत सारी बुक्स की लिस्ट। उस लड़के ने मेरा मैसेज लिया, वो मेरा मैसेज लेकर के दरवाजे से बाहर निकला और जाकर के शॉप पे पहुंचा। तो ये जो लड़का था, तो मैं कौन था, मैं डीएनए था। ये लड़का जिसने मेरे मैसेज को रीड किया, वो बंदा था एमआरएनए। तो उस लड़के का नाम है एमआरएनए, उस छोटे बच्चे का, ऑफिस बॉय का नाम है एमआरएनए, मैसेंजर। वो छोटा बच्चा एक दुकान में जाता है, एक शॉप पे जाता है, वो शॉप वो है जहां पे बुक मिलती है। वो शॉप क्या है, वो शॉप है राइबोसोम। तो शॉप का नाम है राइबोसोम। शॉप में गया, राइबोसोम शॉप में गया, वहां पर उसने देखा कि शॉप का एक ओनर बैठा हुआ है, उस ओनर का नाम है एमआरएनए, ठीक है, सॉरी आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो शॉप का मालिक है, और शॉप के मालिक का नाम है क्या, राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए। तो जो बच्चा मैसेज लेके गया वो एमआरएनए था, जो ओनर था वो था आरआरएनए। वो पहुंचते ही शॉप के अंदर ओनर के पास गया, तो ओनर से उसने कुछ नहीं बोला। ओनर के पास कई सारे बच्चे हैं जो शॉप में अलग अलग की बुक्स को ढूंढ करके लाते हैं और लोगों को बुक प्रोवाइड कराते हैं। 8-10 बच्चे। वो जो 8-10 बच्चे हैं उनका सबका नाम है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, क्योंकि बुक ट्रांसफर करने का काम करते हैं। उसने क्या किया कि उसने अपनी, जो मेरा बच्चा था, उसने क्या किया कि अपनी वो बुक्स की लिस्ट सामने रख दी, है ना। जब सामने रख दी तो वो जो बच्चे हैं, हर बच्चा आता है और बुक को रीड करता है और एक बुक लाके सेल्फ में रख देता है। वो बच्चे कौन है, टीआरएनए, ठीक है।
और वो बुक्स क्या है? एमिनो एसिड। ठीक है, तो बच्चे हर बच्चा ला करके बुक के ऊपर बुक रखता गया। तो बुक्स क्या है? एमिनो एसिड। बुक के गट्ठर को क्या बोला गया? पॉलीपेप्टाइड चेन। और पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब वो बुक्स मेरे पास आ गई। ठीक, क्लियर है? यस तो ये कहानी क्या थी? ये प्रोटीन बनने की प्रोसेस है। तो डीएनए क्या करता है? अपना मैसेज ट्रांसफर करता है। किसको? एमआरएनए को। एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर जाता है, राइबोसोम के पास जाता है और अपने मैसेज को, डीएनए के मैसेज को ट्रांसफर करता है। आरआरएनए उस मैसेज को ले लेता है, वो पढ़ नहीं सकता क्योंकि वो अनपढ़ आदमी। उस मैसेज को पढ़ने का काम कौन करता है? टीआरएनए। हर टीआरएनए अलग अलग एमिनो एसिड लेकर के आते हैं और एमिनो एसिड की एक लंबी सी चेन बन जाती है जिसको हम पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। बाद में वो चेन राइबोसोम से, मतलब बुक शॉप से बाहर बुक आती है, तो राइबोसोम से निकल करके बाहर आ जाती है जिसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। इस तरह से इन सब के फंक्शन होते हैं और यही इनका काम। होप आपको पूरी कहानी क्लियर हो गई होगी। और इस पूरी प्रोसेस को हम प्रोटीन सिंथेसिस या क्या कहते हैं? इस पूरी प्रोसेस को प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन कहते हैं। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? सर, आपने बुक शॉप को सर। क्या कहा? हाँ, बुक शॉप को आपने कौन सा ऑर्गेनल कहा? मैंने उसको बोला राइबोसोम को। सर उसके आने के बाद क्या होगा? मतलब प्रोटीन बन गया, आ गया तो? अब वो प्रोटीन बन के आ गई। अब आप उसका चाहे जो यूज करिए। अगर आप उसको ले जाओगे तो आप खुद पढ़ने का काम करोगे, मैं उसको ले जाऊंगा तो मैं पढ़ाने का काम करूंगा, और कोई तीसरा उठा देगा तो बेचने का काम करेगा। तो डिपेंड करता है कि वो बुक किसके हाथ में है। तो प्रोटीन डिपेंड करती है कि प्रोटीन की फोल्डिंग कैसे हुई। प्रोटीन की फोल्डिंग अगर अलग तरह से हुई तो वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बन जाएगी, सेल वॉल बनाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाएगी, कोई कंपोनेंट बनाएगी। अगर प्रोटीन की फोल्डिंग दूसरी तरह से हुई तो वो एंजाइम बन जाएगी, और दूसरी तरफ से हुई वो हार्मोन बन जाएगी। तो प्रोटीन का मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन का भविष्य जो है, जो फ्यूचर है, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसको फोल्ड कैसे किया। ठीक है सर, बुक्स आपने राइबोसोम बोला? घूसा मारेंगे। अभी तो क्या बोला? बुक्स तो क्या बोला? एमिनो एसिड। अरे सॉरी, हाँ सॉरी, मैं तो शॉप को राइबोसोम बोला ना, तो बुक हो गया एमिनो एसिड, है ना। और लड़के कौन है? टीआरएनए। सर और एक और चीज सर, इस पूरे उसमें आरआरएनए का क्या रोल है? आरआरएनए कुछ नहीं होता, वो तो दुकान का मालिक है, वो दुकान बनाने का काम करता है। दुकान किसने बना रखी है? मालिक ने। ओके सर, समझ गया। समझ गया ना? ठीक है। अब अगर आपको मेरी कहानी बढ़िया से समझ में आ गई प्रॉपर, और हर कहानी का अगर जो ये है, मतलब कहानी का जो एक्टर है, अगर उसका रोल समझ में आ गया तो आपको पूरी कहानी आगे की समझ में आ गई, आपको ज्यादा समझने की जरूरत। ठीक है, आगे चला जाए। टाइप्स ऑफ आरएनए में तो यस। पहला आरएनए है मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। अब इसकी कहानी समझते हैं, ये क्या है, कौन है और क्या काम करता है। काम क्या करता है, कौन है, क्या है, ये तो पूरी बात आपको पता है, ये कौन आदमी है। अब देखो, तो क्या होता है कि अभी मैं ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाऊंगा। ये मैसेंजर आरएनए कहां पे बनता है? न्यूक्लियस में। और काम कहां पे करता है? प्रोटोप्लाज्म में, है कि नहीं? अरे यस। भैया, लड़का गेट से निकल के गया तो कहां? न्यूक्लियर पोर से निकल के गया। तो प्रोटीन सिंथेसिस कहां हो रही है? प्रोटोप्लाज्म में, प्रोटोप्लाज्म। है ना। ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान समझना मेरी बात को। तो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है प्रोटोप्लाज्म में। जब लड़का बाहर निकलता है तो लड़के ने सर पे कैप लगा रखा है, क्योंकि ऊपर से कोई छोटा बच्चा कहीं पत्थर फेंक के ना मार दे, और पैरों में जूते पहन रखे हैं जिससे कि कोई इंसेक्ट उसको काट ना ले, या कोई कंकड़ उसको चुभ ना जाए, कोई कांटा चुभ ना जाए। तो ये वो लड़का है हमारा। कौन? एमआरएनए। तो एमआरएनए क्या करता है? एमआरएनए बनता कहां है? न्यूक्लियस के अंदर बनता है, डीएनए बनाता है। एमआरएनए में क्या होता है? ये वाला पार्ट कोडिंग रीजन कहलाता है। कोडिंग रीजन में क्या होता है? प्रोटीन को बनाने का मैसेज होता है, इसको हम कोडिंग रीजन बोलते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यहां पे स्टार्टिंग में प्रोटीन सिंथेसिस के स्टार्ट के लिए कोई साइट होती है, इसको स्टार्ट साइट बोलते हैं, और जहां प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन बनना बंद करना है उसको स्टॉप साइट बोलते हैं। ठीक है, इधर की तरफ ये 5 प्राइम एंड है और इधर की तरफ 3 प्राइम एंड है। 5 प्राइम एंड में ये येलो येलो जो दिख रहा है, ये ऐसा रीजन है, इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं?
दिस इज कॉल्ड नॉन कोडिंग रीजन, नॉन कोडिंग रीजन। तो बीच में क्या है, बीच में है कोडिंग रीजन जिसको हमने जीन्स कहा, और इसके दोनों तरफ आगे पीछे कौन है, इसके आगे पीछे दोनों तरफ नॉन कोडिंग रीजन, नॉन। ये लिखा है अनट्रांसलेटेड रीजन, ऊपर ही लिख देता हूं, बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको ड्रॉ कर लेना। इसका स्ट्रक्चर आता है भाई बोर्ड के लिए, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड नॉन कोडिंग रीजन। तो इसको हम अनट्रांसलेटेड रीजन बोलते हैं, मतलब ये कोई अमीनो एसिड नहीं बनाएगा, और इसी को हम, इसको भी हम लोग को क्या बोलते हैं, इसको भी हम लोग बोलते हैं नॉन कोडिंग रीजन। तो दो नॉन कोडिंग रीजन हो गए, और बीच के बाद पार्ट हो गया ये जीन्स हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो आगे की तरफ, मतलब मुंह की तरफ जो नॉन कोडिंग रीजन है, इसको हम लोग बोलते हैं लीडर। तो लीडर इसका सर हो गया, और इसके पैर कौन हो गए, इस पीछे वाले को हम लोग बोलते हैं ट्रेलर, ठीक है। तो लीडर और ट्रेलर। अब आप देखोगे ये जो नॉन कोडिंग पार्ट है, जो लीडर वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है ना, तो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे ले 5 प्राइम एंड पे, इसे बोलते हैं मिथाइलेटेड कैप। तो क्या होता है कि जब एमआरएनए बनने के बाद निकल करके न्यूक्लियस से आता है, तो बाहर कहां पे, प्रोटोप्लाज्म में कुछ एंजाइम हैं जो इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, इसको खा सकते हैं। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए आगे की तरफ क्या होता है, 5 प्राइम एंड में मिथाइलेटेड कैप, मतलब ये इसका क्या हो गया, कैप। पीछे की तरफ पॉली ए टेल, मतलब ए एडेनिन से बनी हुई एक लंबी सी चेन होती है, इसको पॉली ए टेल बोलते हैं। तो 5 प्राइम एंड पे मिथाइलेटेड कैप होता है, 3 प्राइम एंड पे पॉली ए टेल होती है। ये भी क्या करती है, ये भी इसको हाइड्रोलिटिक एंजाइम से डाइजेस्ट होने से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो दोनों ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम से बचाने का काम करते हैं। ये रहा स्ट्रक्चर एमआरएनए का, समझ आया क्या। यस सर। इसका स्क्रीनशॉट लो और हेडिंग डाल लिखो एमआरएनए, लिखो एमआरएनए क्या होता है। चलो स्टार्ट करो। mRNA carry message or information. mRNA carry message or information from DNA for the synthesis of polypeptide chain. For the synthesis of polypeptide chain. Full stop. It is also called informational RNA. It is also called informational RNA. Full stop. Next point, important underline करेंगे. The mRNA forms about 5% RNA of mRNA forms about 5% RNA of total cell. Of total cell. This is a linear and longest RNA molecule. This is the linear and longest RNA molecule. Its length is not fixed. It varies. Its length is not fixed. It varies according to the length of gene. It varies according to the length of genes. Next point. अच्छा इसी में लिखो. Its length varies. Full stop. इसी के आगे लिखो. Its length varies. That's why it is also called HNRNA. Heterogeneous RNA.
हेट्रोजीनस आरएनए। ये जितना लंबा जीन होगा उतना लंबा एमआरएनए बनेगा, इसीलिए इनकी लेंथ अलग अलग होती है, इसीलिए इनको एचएनआरएनए या हेट्रोजीनस आरएनए कहा जाता है। हर आरएनए की लेंथ अपनी अलग होती है, डिपेंड्स ऑन द जीन। नेक्स्ट, a small non-coding region at 5' end is called leader segment. A small non-coding region called leader segment at 5' end follows the cap and another non-coding region. A small non-coding region at 5' end called leader segment follows the non-code follows the cap and another non-coding region at 3' end and another non-coding region at 3' end is called trailer segment. Which is preceded with tail. Next point, which is preceded with tail, which is preceded with tail. Full stop. Next point, the cap protect mRNA from degeneration by hydrolytic enzyme. The cap protect mRNA from degradation by hydrolytic enzyme. Full stop. It also help, मतलब cap है ना, it also help to attach to ribosome. Next point, there is a poly A tail, which checks degradation of mRNA from tail end. From tail end. ठीक है, अब देखो, जो प्रोकैरियोट में, तो प्रोकैरियोटिक एमआरएनए जो होता है ना, तो प्रोकैरियोट एमआरएनए जो होता है ये कई सारी पॉलीपेप्टाइड चेन का बनाने के इंफॉर्मेशन ले जाता है। तो क्या करता है, इंफॉर्मेशन फॉर मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन, ये कई सारी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने की इंफॉर्मेशन के लिए इंफॉर्मेशन ले जाता है। तो एक एमआरएनए, तो मतलब ये वो बच्चा है
जिसने कई सारे टीचरों से क्या ले रखी है, बुक्स की लिस्ट ले रखी है। तो ये वाला जो बच्चा है जिसने कई सारे टीचरों से बुक की लिस्ट ले रखी है, इस बच्चे को मतलब कि वो एमआरएनए जो कई सारे जीन से इंफॉर्मेशन लेकर के जाता है और कई सारी पॉलीपेप्टाइड, एक एमआरएनए कई सारी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है, इस बच्चे को, इस एमआरएनए को क्या बोलेंगे, पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। क्या मेरी बात समझ में आई? यस पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए, ठीक है। अच्छा, एक दूसरा बच्चा है, वो कहता है मैं एक बार में एक ही टीचर से ऑर्डर ले जाऊंगा। वो कौन, किसका बच्चा है? वो यूकैरियोटिक एमआरएनए। ये दूसरा वाला बच्चा सोफिस्टिकेटेड है, कहता है कि देखो भाई साहब मैं 10 बार चला जाऊंगा लेकिन एक बार में एक ही टीचर की लिस्ट लेके जाऊंगा। तो ये यूकैरियोटिक एमआरएनए ये क्या करता है, एक यूकैरियोटिक एमआरएनए क्या करता है, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए इंफॉर्मेशन ले जाता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इस बच्चे को मैंने नाम दिया मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। क्या मेरी बात आप समझ पाए? यस सर। बहुत बढ़िया। तो आप इसको नोट कर लीजिए, है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, एक बार नहीं कई सारे, है ना। मोनोसिस्ट्रॉनिक पॉलीसिस्ट्रॉनिक ये दोनों लिहाज से इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी और आपके स्कूल एग्जाम के लिए। तो स्टार बना के लिख लेना। बैक्टीरियल और प्रोकैरियोटिक एमआरएनए, बैक्टीरियल और प्रोकैरियोटिक एमआरएनए carry the information, bacterial or prokaryotic mRNA carry the information for more than one polypeptide chain. Such mRNA is called polycistronic mRNA. Such mRNA is called polycistronic mRNA. Next, in eukaryote RNA, one RNA, in eukaryote, one RNA, mRNA, carries information. In eukaryote, one mRNA carries information for one polypeptide, carries information for one polypeptide chain. Hence, it is called monocistronic mRNA. ठीक है। नेक्स्ट tRNA, है ना, ठीक है भाई। यस सर। हाँ बोलो। जब ये एमआरएनए राइबोसोम पे जाता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस कराता है तो वही ये प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन अपने साथ वापस डीएनए के अंदर लाता है ना? ना, वो मैं पूरी प्रोसेस बताऊंगा। अभी ट्रांसलेशन हम लोग पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा कि वो अपने साथ नहीं लाता है। वो एमआरएनए मतलब अपने वो अपनी इंफॉर्मेशन देके निकल गया और पॉलीपेप्टाइड चेन अलग निकल के बन के वापस चली गई, बन गई, ऐसे होता है। ओके सर। वो तो मैंने कहानी जिससे कि आपको सीक्वेंस पता रहे और आपको हर चीज का रोल पता रहे, अगर आपको ये याद रहा तो आपसे गलती नहीं होगी, आपकी चीजें, इसलिए मैं वो कहानी आपको बता रहा हूँ। सर और एक और बात, ये जो यूकैरियोटिक एमआरएनए होता है उसको तो इवोल्यूशन के साथ ज्यादा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए था, तो वो एक ही बार में क्या कहते हैं, एक ही बैक्टीरिया, वो स्पेसिफिक है, समझो। आप तुम एक छोटे होटल में जाते हो तो वहीं पे वही लड़का तुम्हारे टेबल पे पोछा मारता है, वही लड़का हाथ धो के आता है, फिर ऑर्डर लेता है, वही लड़का खाना लेकर के आता है, वही लड़का बिल लेकर के आता है ना, ऐसे होता ना। समझ गया लेकिन जब सर। तुम किसी बड़े होटल में जाते हो तो फ्लोर पे पोछा लगाने वाला एक अलग आदमी होता है और वो टेबल साफ करने वाला अलग आदमी होता है, प्लेट कलेक्ट करने वाला अलग आदमी होता है, वेटर जो ऑर्डर लेता है वो अलग आदमी होता है ना। तो आप देखते हो तो जहाँ पे स्पेशलाइजेशन जहाँ पे होता है तो वो ज्यादा इवॉल्व होता है ना, है ना।
यस सर। तो जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट। अब आ जाते हैं भाई लोग टीआरएनए। टीआरएनए का डायग्राम याद रखना, ये बोर्ड में पूछा जाता है कि ड्रॉ द अवेलेबल डायग्राम ऑफ टीआरएनए और क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ होली, है ना, आरएस होली। देखो ये टीआरएनए का डायग्राम, इस डायग्राम को देने का जो क्रेडिट जाता है उन भाई साहब का नाम था RW होली, RW HOLLEY, RW होली, है ना। इन भाई साहब ने इस बताया कि टीआरएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इन्होंने टीआरएनए का मॉडल दिया। इस टीआरएनए के मॉडल को कहते क्या है, ये जो मॉडल आपको सामने दिखाई दे रहा है इसको क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं, क्लोवर लीफ मॉडल। तो अगर बोर्ड में क्वेश्चन है ड्रॉ द अवेलेबल डायग्राम ऑफ क्लोवर लीफ मॉडल या हॉली स्ट्रक्चर या टीआरएनए, यही बनाना है आपको और कुछ नहीं बनाना। टीआरएनए ऐसे दिखाई देता है और सबसे छोटा आरएनए। यहाँ पे इस एंड पे तो मैंने बताया ये बच्चे का वो हाथ है जिससे वो बुक लेकर के आ रहा है ना। तो इस पार्ट को हमने क्या बोला, एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट। इससे वो पकड़ पकड़ करके अमीनो एसिड लेकर के आता है ना। तो इसको हमने बोला एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट। कहाँ पे होती है, 3 प्राइम एंड में होती है। आप देख पा रहे होंगे और छोटा कर ज्यादा, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे हैं ये होती है 3 प्राइम एंड पे, है ना। तो एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट, ठीक है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं कैरियर एंड। सर बुक स्टोर वाला बच्चा होना, हाँ बुक स्टोर वाला बच्चा ना, जो बुक स्टोर से हाँ, बुक स्टोर वाले जो बच्चे हैं इसे हम लोग बोलते हैं भाई साहब कैरियर एंड। इसी को एमिनो एसिड एंड को कैरियर एंड बोलते हैं। आखिरी में इसको क्या होता है, जो सीक्वेंस होता है CCA और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल एंड होगा, ये तय है, ये पक्का होगा। तो ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा, CCA सीक्वेंस होता है ना। अब देखो यहाँ पर बीच में ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो आपको दिख रहे हैं दे आर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप देख पा रहे हैं कहीं पे सिंगल स्टैंड है, कहीं पे डबल स्टैंडर्ड है, ऐसे बना हुआ है। अब इधर वाला जो लूप है इसको टी साई सी लूप कहते हैं, है ना। टी साई जो सी लूप होता है, इस साइड को हम लोग बोलते हैं राइबोसोम साइड। तो यहाँ पे राइबोसोम, ये हिस्सा जाके राइबोसोम में जुड़ता है, तो दिस इज कॉल्ड राइबोसोम साइड। तो राइबोसोम साइड हो गई। ये छोटा सा एक्स्ट्रा आर्म निकला होता है। नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं एंटीकोडॉन लूप। बहुत गौर से समझिएगा मेरी बात को, इसे एंटीकोडॉन लूप कहते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं टी यू, सॉरी ये तो होगा नहीं, ए यू जी यहाँ पर। तो ये एंटीकोडॉन पड़ेगा। तो अब देखो, समझना मेरी बात को, नीचे आपके पास ये जो है ये क्या है, ये mRNA, क्या है ये, मैसेंजर आरएनए। तो मैंने कहा कि मैसेंजर आरएनए के मैसेज को रीड कौन करेगा, वो लड़के टीआरएनए लीड करेगा। तो इसके पास जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, तो ऊपर वाला एंटीकोडॉन, तो इसके पास जो ट्रिपलेट होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, यू के आगे क्या आएगा, ए के आगे यू, यू के आगे ए, और यहाँ पे क्या आएगा, जी के आगे सी। ये जो ट्रिपलेट नाइट्रोजन बेस है या एमिनो एसिड ट्रिपलेट नाइट्रोजन बेस, इसको बोलेंगे कोडॉन। तो हमेशा mRNA में जो 3-3 के ग्रुप में, 3-3 के ग्रुप में नाइट्रोजन बेस होते हैं, इनको कोडॉन कहा जाता है। और उसको रीड करने के लिए जो टीआरएनए के पास क्या होता है, एंटीकोडॉन होता है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। तो ये इसको हम एंटीकोडॉन लूप बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, ये वाला ये सब कोडॉन्स हो गए। तो इस तरह से हर बार एक कोडॉन को एक टीआरएनए पढ़ेगा, दूसरे कोडॉन को दूसरा टीआरएनए पढ़ेगा, तीसरे कोडॉन को तीसरा टीआरएनए पढ़ेगा, है ना। तभी मैंने कहा कि ये टीआरएनए कौन है, हाँ सर कोडॉन mRNA, कोडॉन एमआरएनए के पास होते हैं। तो एमआरएनए में लंबा सा सीक्वेंस है, उन सीक्वेंस में 3-3 के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, 3-3 नाइट्रोजन बेस के सेट को क्या बोलते हैं, कोडॉन कहते हैं। क्लियर है? और हर कोडॉन का कुछ मतलब होता है, क्योंकि हर पॉइंट में एक बुक लिखी हुई है, उसका मतलब है अपना। कौन पढ़ रहा है, वो बच्चे पढ़ रहे हैं, समझ गए। और उसको पढ़ के बच्चे क्या लेके आ रहे हैं, बुक्स लेके आ रहे हैं। मतलब क्या लेके आ रहा है, टीआरएनए क्या लेके आ रहा है, एमिनो एसिड।
तो कोडॉन का मतलब क्या है कि हमको ये वाला अमीनो एसिड चाहिए, समझे? क्लियर? यस यस सर। ठीक है। अब देखिए ये वाला जो DHU लूप होता है, इस लूप को हम लोग एंजाइम साइड भी बोलते हैं। यहाँ पे एंजाइम आकर के जुड़ता है, एंजाइम साइड, इसको हम लोग एंजाइम साइड कहते हैं, है ना? और ये एंटीकोडॉन लूप है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, थोड़ा लिख कर देना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिखवा देता हूँ। डायग्राम याद रखना, इसका डायग्राम 3 मार्क्स में बोर्ड के एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन। डन? यस सर। चलो नोट करो। tRNA carries the specific amino acid full stop, इसी में लिखेंगे। it forms the 15% of total RNA of cell. It forms 15% of total RNA of cell. It forms 15% of total RNA of cell. ठीक है। Next point. It is the smallest of all RNA. It is the smallest of all RNA. ठीक है। Next point. This structure was proposed by R.W. Holy. This structure was proposed by R.W. Holy in 1965 and called cloverleaf model. Next point. सर इन And called cloverleaf model. Next point. The 3' end is called carrier end. 3' end is called carrier end. It carries is called carrier end. It carries the amino acid. Next. The recognition end or anticodon loop. The recognition end or anticodon loop contain the complementary base triplet, contain the complementary base triplet against codon. Full stop. Anticodon and codon important है, अंडरलाइन करोगे। Anticodon and codon forms temporary hydrogen bond during protein synthesis.
नेक्स्ट, एंटीकोडॉन, सर प्लीज रिपीट कर दीजिए, एंटीकोडॉन एंड कोडॉन फॉर्म्स। एंटीकोडॉन एंड कोडॉन फॉर्म्स टेम्परेरी हाइड्रोजन बॉन्ड ड्यूरिंग प्रोटीन synthesis. Next, the enzyme site is meant for the attachment of enzymes which catalyzes the reaction of attachment of which catalyzes the reaction of attachment of amino acid. सर एक और बार रिपीट। The enzyme site carries the enzyme enzyme site carries the attachment site for enzymes which catalyzes the union of amino acid. Next, ribosome site is meant for attachment of ribosome site is meant for attachment of ribosomes ठीक है। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट है राइबोसोमल आरएनए। इसका ऐसा कोई डायग्राम नहीं होता, फिर भी देखता हूँ, अगर मेरे पास होगा डायग्राम तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता राइबोसोमल आरएनए का, ये जस्ट फोल्डिंग होती है। राइबोसोमल आरएनए ऐसे फोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं और कुछ नहीं, थ्रेड लाइक फोल्डिंग ऑफ थ्रेड। द राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल is greatly coiled, full stop, in combination with protein, it forms a small and large subunit of ribosomes. Hence its name, full stop. Next point. It forms about 80% of total RNA of a cell. It forms about 80% of total RNA of a cell. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आप नोट कर लीजिए, ये इसका डायग्राम होता है। अब देखो आरएनए भी कई तरह के पाए जाते हैं। जो लोग मेरे साथ सेल बायोलॉजी जिन्होंने पढ़ी होगी 11th में, उनको मैंने बताया था, फिर से बाकी लोगों को भी रिमाइंड एक बार करवा देता हूँ कि ये राइबोसोमल आरएनए होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। ये देखो, ये 70s सब यूनिट है प्रोकैरियोट की, है ना। तो हमें पता है कि 70s जो सब यूनिट होती है दो से बनी होती है, 50s और 30s से। ये देखिए, ये 50s है और 30s है। 50s किससे बनी होती है? 5s आरआरएनए। तो देखिए एक आरएनए का टाइप होगा 5s, फिर 23s आरआरएनए, ठीक है, 34 प्रोटीन, 16s आरआरएनए। तो यहाँ पे ऐसे आरएनए हो गए। अगर यही यूकैरियोट होता तो आप समझिए 5s आरएनए एक होता है, हाँ 5s
दूसरा होता है 5.8s, है ना। तीसरा होता है 28s RNA, और चौथा होता है 18s RNA, राइबोसोमल RNA। तो यूकैरियोट में ये इस तरह के 4 तरह के आरएनए पाए जाते हैं, और प्रोकैरियोट में ये 3 तरह के आरएनए पाए जाते हैं। ठीक भाई, तो ये था हमारा क्या, टाइप्स ऑफ आरएनए। समझ आया भाई लोगों? किसी को कोई डाउट बोलो बच्चों? नहीं, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं, तो अब आप हेडिंग डालेंगे ट्रांसक्रिप्शन। तो हम आपको एक कहानी और समझाते हैं। देखिए भाई साहब, ट्रांसक्रिप्शन क्या चीज है? तो कई बारी आता है बोर्ड में क्वेश्चन, राइट डाउन द सेंट्रल डोग्मा। ये सेंट्रल डोग्मा ऑफ सेल क्या मतलब होता है? तो मैं बताता हूँ सेंट्रल डोग्मा। तो पूरी प्रोसेस से हम लोग पढ़ा, सेंट्रल डोग्मा ही तो थी। डीएनए ने ऑर्डर दिया किसको? एमआरएनए। तो डीएनए ने किसको बनाया? एमआरएनए को। और एमआरएनए ने क्या बनाया? पॉलीपेप्टाइड, जो आखिरी में क्या बनेगी? प्रोटीन। ठीक है, तो देखिए, डीएनए से एमआरएनए, और एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन। तो डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस को हमने क्या कहा? ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को हमने क्या कहा? ट्रांसलेशन, है ना। एंड दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। इसको हम सेंट्रल डोग्मा, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल। क्लियर है भाई? सर आपने कहा डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस, मतलब डीएनए जो उसमें मैसेज दे रहा है उसकी प्रोसेस ना? डीएनए, एक्चुअली डीएनए के टेम्पलेट पे ही एमआरएनए बनता है, तभी तो मैसेज देगा, और कैसे देगा? ओके सर। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों में बताऊंगा आपको। और इस पूरी प्रोसेस को अगर सेंट्रल डोग्मा आपसे पूछा जाए तो आपको ट्रांसक्रिप्शन भी लिखना है, ट्रांसलेशन भी लिखना है। ठीक है, नोट कर लिया? ठीक, ठीक। Just wait for a second. देखो भाई साहब, आपको मैं अब एक वीडियो दिखाता हूँ, है ना। वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए, लेकिन ध्यान से मेरी बात को समझते रहना। देखो, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, डीएनए की टेम्पलेट पे आरएनए कैसे बनता है। ये डीएनए, और ये पार्ट क्या है? डीएनए का जीन, मतलब जो कोडिंग पार्ट है उसको हम लोग जीन्स कहते हैं, है ना। जीन्स का ही ट्रांसक्रिप्शन होता है, इसी में इंफॉर्मेशन छिपी हुई है। अब देखो, प्रमोटर जीन वो पार्ट होता है, भी सिर्फ समझना है आपको, दिमाग पे ज्यादा नहीं जोर डालना, समझना है। प्रमोटर जीन वो पार्ट होता है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज बनता है। तो डीएनए के टेम्पलेट पे आरएनए को बनाने का जो काम करता है उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम है
जो डीएनए की टेम्पलेट पे आरएनए बनाएगा। डीएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम था जो डीएनए की टेम्पलेट पे डीएनए बना रहा था। अब डीएनए की टेम्पलेट पे जो आरएनए बनाएगा उसको हम बोलते हैं क्या? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जिस जगह जुड़ेगा उसको बोलेंगे प्रमोटर साइट, और जहां से अलग हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, उसको बोलेंगे टर्मिनेटर साइट। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ट्रांसक्रिप्शन के लिए मतलब रेप्लिकेशन के लिए पूरा डीएनए का फार खुलना होता था। तर यहां पे आरएनए बनने के लिए डीएनए के पूरे फॉर को खुलने की जरूरत नहीं, बीच बीच में कहीं पे फॉर खुल जाएगा, आरएनए बनेगा और फिर से रिवाइंड हो जाएगा। देखिए बात को पूरी। तो प्रमोटर एंड पे आकर के आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा। ये प्रमोटर एंड पे ये जो रेड रेड दिखाई रही है इसको हम रिकॉग्निशन साइट कहते हैं। यहां पे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा। अब देखते जाओ, ये चारों तरफ आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड हैं एयूजीसी वो सब घूम रहे हैं चारों तरफ प्रोटोप्लाज्म में, सॉरी न्यूक्लियोप्लाज्म में। ये देखिए लोकली ये अनवाइंड करता है। अब समझना, एक स्टैंड है जिस पे आरएनए बनेगा। डीएनए से डीएनए दोनों स्टैंड पे बनता है, डीएनए से आरएनए यहां एक ही स्टैंड पे बनता है। जैसे डीएनए पॉलीमरेज 5 to 3 प्राइम एंड चलता है वैसे आरएनए पॉलीमरेज भी 5 to 3 प्राइम एंड चलता है, लेकिन यहां पे फॉर्मेशन एक ही स्टैंड पे होगा। जिस स्टैंड पे डीएनए के जिस स्टैंड पे आरएनए बनेगा उसको टेम्पलेट स्टैंड बोलेंगे, दूसरे वाले को नॉन टेम्पलेट स्टैंड। समझिए, ये देखो, तो डीएनए की सेंसेस 5 to 3 हो रही थी, ये भी सेंसेस 5 to 3 होगी, और आरएनए बन बन के अलग होता जा रहा है। ये आरएनए बनता जा रहा है, प्रमोटर से बनना शुरू हुआ, ये आरएनए को बना बना के इंफॉर्मेशन को रीड करके एकदम बिल्कुल इंफॉर्मेशन कोड करके देता जा रहा है। आरएनए बन, जैसे टर्मिनेटर साइट आई, टर्मिनेटर साइट आते ही आरएनए अलग, आरएनए पॉलीमरेज अलग हो गया, आरएनए अलग हो गया। देखते जाइए, आरएनए में अब क्या न्यूक्लियोप्लाज्म से बाहर आना है, इसको प्रोटेक्शन देना है। अब समझिए बात को। एक और चीज, आरएनए दो तरह की चीजों को कोड करता है, कोडिंग पार्ट और नॉन कोडिंग पार्ट। जो कोडिंग वाले पार्ट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इंट्रॉन्स, और जो नॉन कोडिंग पार्ट होते हैं उनको इंट्रॉन्स बोलते हैं, और कोडिंग पार्ट्स को बोलते हैं क्या? एक्सॉन्स। अब ये जो इंट्रॉन्स है, नॉन कोडिंग पार्ट है, इनको कट करके देखो आगे की तरफ। यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे आप देखिए पॉली ए टेल लग गई, सॉरी ये मिथाइलेटेड कैप लग गया, पीछे पॉली ए टेल लग जाएगी ताकि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सके, ये इसको एंजाइम्स खाए ना बाहर निकलने के बाद। फिर अब इसमें ये रेड वाला जो पार्ट है ये कोडिंग वाला पार्ट है, मतलब क्या है? एक्सॉन है। बीच बीच में एंट्रॉन्स है जिनका कोई मतलब नहीं, नॉन कोडिंग पार्ट है। तो अब क्या होगा, एक स्प्लाइसिंग एंजाइम आकर के, स्प्लाइसिंग प्रोटीन आकर के इसको हेयर पिन लूप फॉर्म में फोल्ड करेगी, उस स्ट्रक्चर को स्प्लाइसोसोम कहते हैं, और इस पार्ट को काट करके निकाल दिया जाएगा। इसको आरएनए की प्रोसेसिंग या आरएनए का मैच्योरेशन कहते हैं। ये देखिए स्प्लाइसिंग प्रोटीन आई, इसने यहां पे नॉन कोडिंग वाले पार्ट को पकड़ा, हेयर पिन लूप बनाया, इस पूरे स्ट्रक्चर को स्प्लाइसोसोम बोलते हैं, कट किया, बाहर निकाल दिया, साइज कर दिया। अब हमारा मैच्योर आरएनए बन गया। इस आरएनए में जीन्स के लिए इंफॉर्मेशन है। अब देखो, ये न्यूक्लियर पोर से बाहर निकल गया, पोर से बाहर निकलने के बाद बाहर आ गया, और अब ये प्रोटीन की सिंथेसिस का, ये इसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हो गया। ठीक है, दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। समझ आया भाई? इनको हम ये तीन का जो सेट, इसको देखो कोडॉन कहते हैं, है ना? और इस तरह से इतने तरह के, मतलब 64 टाइप के कोडॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, आप समझते हो? मैं कोडॉन भी, चलो कोडॉन में बात करते हैं। सर नॉन कोडिंग पार्ट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है? नॉन कोडिंग पार्ट मतलब जो किसी पर्टिकुलर एमिनो एसिड को कोड नहीं करता उसको नॉन कोडिंग पार्ट कहते हैं। सर तो वो बनते ही क्यों है शुरुआत में? ये एक्चुअली जीन्स में स्टार्टिंग से एवोल्यूशन में ऐसा है। हमारी बॉडी में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, हमारी बॉडी में नॉन कोडिंग जो हमारा जो जीन्स का डीएनए का पर्टिकुलर पार्ट है उसमें एक नंबर ऑफ जीन्स है नॉन कोडिंग पार्ट है। वो नॉन कोडिंग पार्ट एक्चुअली वो जीन्स थे जो पहले हमारे एंसेस्टर्स में पहले काम करते रहे होंगे, धीरे धीरे उनका यूज खत्म होता गया, तो क्या हो गया, वो जीन्स साइलेंट होते गए, अब उनको कोड नहीं किया जाता है। ठीक है, जिससे कि हाँ एक तरह से वेस्टीज है। हाँ वही ना, कि जो जीन काम बेकार के उनको स्विच ऑफ किया, तो यही एडेप्टेशन हो गया, इसी को हम एवोल्यूशन कहते हैं। ओके सर, क्लियर है? तो Yes, चलिए sir. फिर डालिए, हेडिंग डालिए ट्रांसक्रिप्शन। सर और एक और चीज, जो ये मैच्योर एमआरएनए होता है उसमें नॉन कोडिंग पार्ट बिल्कुल नहीं होता है क्या? क्या? जो मैच्योर एमआरएनए होता है सर उसमें ना नॉन ना, उसमें कोडिंग, बिल्कुल नहीं था, नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं।
सर तो जो डायग्राम हमने से पहले दिखाया था उसमें तो किनारे पे थे तो अरे वो तो आगे थोड़ा वो हम लोग वो लोग पढ़ेंगे वो क्यों होता है, वो आगे समझ आएगा धीरे धीरे। वो ओके बहुत ओके थोड़ा सा पार्ट है, वो थोड़ा सा पार्ट वो है ना, वो जैसे ट्रेन की दो बोगी के बीच में जंक्शन होता है, ये वो पार्ट है। ओके सर। सर हाँ जी बेटा बोलो। सर न्यूक्लियर पोर से सिर्फ मैच्योर आरएनए बाहर निकल सकता है? राइट, नहीं निकल तो कोई भी आने ले सकता है, लेकिन बाहर वो खत्म हो जाएगा जाकर के। और निकलने में जो हेल्प करता है, वो हेल्प करने वाला जो है वो कौन है, मिथाइलेटेड कैप, वो हेल्प करता है। उसके बिना निकल पाना थोड़ा मुश्किल काम है। ये वाला डायग्राम आप नोट कर लो, ठीक भाई, ओके नोट करो। अच्छा इसको डायग्राम को नोट करो पहले, मतलब स्क्रीनशॉट लो, फिर एक कहानी और समझाता हूँ। हाँ चलो ले लिया, इसको कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। यस एक ये वाला देखो, तो यहाँ पर क्या होता है, ये बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ट्रांसक्रिप्शन थोड़ा सा ट्रिकी चीज है। यहाँ पर देखो, ये ऊपर वाला जिस पे है ना, समझना मेरी बात को, ऊपर वाला जिस पे यहाँ पे 3 to 5 एंड ये 5 प्राइम एंड मूव कर रहा है ना, तो देखो 5 to 3 प्राइम एंड इसकी सिंथेसिस हो रही है आरएनए की, राइबोस ये मैसेंजर आरएनए की। अब देखो यहाँ पर, आप देखो यहाँ पर क्या है, ये जो ये वाला है, ये वाला जो सीक्वेंस है UACUGCC, ये किसकी कॉपी है, नीचे वाले की ना, टी। अब टी तो आ नहीं सकता है ना, क्योंकि डीएनए में टी पाया जाता है, AC टी की जगह UGCC, तो ये दोनों आपस में कॉपी है कि नहीं, ये बताओ, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों एक दूसरे की कॉपी है ना। सब लोग भाई समझेंगे बात को, जिसको ना समझ में आए, जिसको मेरी बात में कोई दिक्कत हो पूछेगा। तो मैंने आपसे कहा कि मुझे लगता है कि ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट, ये इस नीचे वाले पार्ट की कॉपी है कि नहीं है, बताओ। यस यस सर। बस फर्क ये है कि ऊपर mRNA, ये डीएनए है, तो यहाँ पे टी और यू का फर्क है, बाकी नीचे वाले की कॉपी है। तो इसने ये बना ऊपर वाले पे है ना, तो टेम्पलेट कौन है, टेम्पलेट तो भाई साहब ऊपर वाला है, तो एंटी इसको हमने क्या बोलेंगे, टेम्पलेट स्टैंड बोलेंगे, तो टेम्पलेट ऊपर वाला है, लेकिन उसने कॉपी किसकी किसकी की, नीचे वाले की ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो नीचे वाले की कॉपी हो रही है, बन भले ही ऊपर वाले में रहा है ना, इसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, और ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। क्यों, ये कोडिंग नीचे वाली की जा रही है, ऊपर वाले की नहीं की जा रही है, तो इसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं और उसको नॉन कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। जिस पे बनेगा उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे, तो नीचे वाले को क्या बोलेंगे, नॉन टेम्पलेट, ठीक है। अच्छा, ये मतलब ये किसका मतलब ले रहा है, मतलब नीचे वाले का ले रहा है, इसलिए नीचे वाले को सेंस कहेंगे, और ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, एंटी सेंस। समझ आया। यस 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 सर। ये हूबहू आप इसको कॉपी कर लेना, क्योंकि आपको ये किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। आप जिस मर्जी बुक से पढ़ लेना, अगर आपको क्लियर हो जाए आप मुझे बताना कि सर मुझे क्लियर हो गया। ये जो मैंने अभी आपको बताया इसको आप कॉपी करो। टेम्पलेट कौन सा, बहुत कंफ्यूजन होता है, लैंग्वेज ऐसे दी रखी बुक में समझ में नहीं आएगा, टेम्पलेट कौन है, नॉन टेम्पलेट कौन है, सेंस कौन है, एंटी सेंस कौन है, इसलिए इसको तुरंत कॉपी करो और इसको आप ड्रॉ कर लेना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब पूरी कहानी हो गई, अब आपको सब बात समझ में आ गई। चलो one of the two DNA strand, one of the two DNA strand
that has polarity of 3 to 5 prime end act as template strand. Full stop. The other strand with polarity of 5 to 3. The other strand with polarity of 5 to 3 act as coding strand. Next point. The promoter sequence, the promoter site is that site where RNA polymerase attaches remains at where RNA polymerase attaches remains at 3 prime end, remains at 3 prime end, मतलब ये प्रमोटर साइट होगी, remains at 3 prime end. Full stop. The transcription start from 3 to 5 prime of template. Next point. The RNA polymerase bind at promoter site. Full stop. अगला पॉइंट अंडरलाइन करेंगे. The promoter also determine, अब promoter इधर है तो इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, इधर है तो इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा. The promoter, RNA polymerase binds at promoter site of DNA. Full stop. The promoter also determine which DNA strand is going to be transcribed. Next point. The RNA polymerase unwind the DNA locally. RNA polymerase unwind the DNA locally and synthesizes the RNA on DNA template. Next point. Only sense strand of DNA only sense strand of DNA function as the copy site. And other strand is called template strand.
Another strand called temperate strand is also called antisense strand. Next point. When RNA polymerase get terminator signal, when RNA polymerase gets terminator signal, it terminate the formation of mRNA. One last point. सर इसमें क्या कहा कि when RNA polymerase के बाद When RNA polymerase gets terminator signal, it stop RNA formation. One last point. After transcription, DNA strands rewind again. ठीक है, सब यूनिट अलग हो जाएंगे, ये फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर भाई? यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो नेक्स्ट क्लास पे हम लोग पढ़ेंगे अगला ट्रांसलेशन। ठीक है, और ये जो मैंने डायग्राम दिखाए उनको बना लीजिएगा, नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, राइट? थैंक यू Thank you, सर। sir. Bye, sir. बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।